Good morning, children. This is for students of class 11th. I am going to start another poem, The Voice of the Rain. And this is yet another very interesting and important poem from your textbook. And this is written by Walt Whitman. He was an American poet. And let us begin with the poem. Very interesting. A lot of poetic devices are there. And probably you're going to enjoy it once again. The Voice of the Rain, written by Walt Whitman, children. So I'm going to start with the first line now. And who art thou? Said I to the soft falling shower. Who art thou? Art thou is an archaic word which means who are you? Archaic words are those words which are no longer used in modern poetries. So who art thou? This is the question put up by poet to this soft falling shower, that is to the raindrops. So poet is putting up a question to raindrops that who are they? So it is very strange to even believe that raindrop is responding with strange to tell. This is a little unusual and odd that these raindrops are giving reply. So it gave me an answer as here translated. So whatever answer was given by the raindrops to the poet, it has been translated here. It said, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. So it was rain's voice and it gave the reply that she is the poem of the rain, of the earth. So this is the reply given by the rain. And here is personification. I am the poem of the earth. The raindrop is referring itself to the poem. So rain is treated like a human being here. So personification is here. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. So she is telling about the origin from where it rose. It has risen impalpable. Impalpable means something which cannot be touched. It is abstract. Okay, eternal means perpetual, everlasting, immortal. So she came out of the land and the bottomless sea. So it means land here refers to the water reservoir on land and sea in itself is a full reservoir of water. So वो यहाँ पर पोएट ने एक सवाल पूछा बारिश से कि तुम कौन हो, और अजीब बात है ये बताना कि एक बारिश ने जवाब भी दिया. जवाब ये दिया कि मैं इस धरती की कविता हूँ और मैं कहाँ से उठी हूँ. मैं उठी हूँ इस धरती से, मैं उठी हूँ इस अथाह समुद्र से. और समुद्र भी कहाँ, जहाँ पर पानी है, लैंड पर जहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर्स हैं. तो मैं इटर्नल हूँ, यानी मैं इमॉर्टल हूँ, परपेचुअल हूँ, कंटिन्यूअस हूँ. और मेरी जो मूवमेंट है वो कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ है, अपवर्ड टू हेवन. सो मैं ऊपर जाती हूँ जब वेन्स, जहाँ से वेन्स मीन्स वेयर टू, वेगली फॉर्म मतलब जहाँ मैं जाकर वेग फॉर्म होती है, यानी कि मैं बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है, बहुत क्लियर नहीं रहती हूँ, मेरी फॉर्मेशन, मेरी शेप बहुत क्लियर नहीं रहती है. ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम. अब यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है बच्चों की रेन ड्रॉप्स ने अपना फॉर्म जो है वो चेंज तो कर दिया, शेप बदल लिया, लेकिन कॉम्पोजिशन सेम है. ठीक है, तो इट हैज कंप्लीटली चेंज द फॉर्म बट येट इट रिमेन्स द सेम. सो हाउ इट हैपन्स, आपने देखा होगा कि पानी जो है तीनों रूप में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, भाई कॉम्पोजिशन तो H2O ही होता है. अब चाहे वो सॉलिड हो जाए तो आइस है, गैस हो जाए तो वेपर्स है. तो इस तरीके से बच्चों ध्यान रखना है. तो ये एक तरीके से दिस होल पोएम इज रिलेटेड टू साइंस where you must have read it in your earlier classes in 6th, 7th, 8th about water cycle. So this is being given, the scientific fact has been given a literary voice. That is the only thing. So here we are talking about water cycle, and when it goes up towards the heaven, the shape is changed, yet the composition remains the same. I descend to lay the droughts, atomies, dust layers of the globe. So the raindrops come down, it descends down. To lave means to wash, to clean away, to bathe away. The droughts का मतलब होता है जो ड्राई एरियाज होते हैं, और एटमीज का मतलब होता है वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स. तो जब मैं इस ग्लोब पर नीचे की तरफ आती हूँ तो मैं ड्राई एरियाज को वेट कर देती हूँ, मैं टाइनी पार्टिकल्स को, डस्ट लेयर्स को एकदम वॉश ऑफ कर देती हूँ, धो देती हूँ, साफ सुथरा कर देती हूँ. आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के बाद चीज़ें धुल जाती हैं, तो वही रेफरेंस है यहाँ पर. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स.
और ये भी सच है कि मेरे बिना यानी बारिश के बिना इस धरती में जो भी चीजें थी वो एक बीज ही रह जाता। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, अनबॉर्न, अनस्प्राउटेड रह जाता, अनजर्मिनेटेड रह जाता। तो ये बीज ही रह जाता अगर मैं बारिश की बूंदें उस पर नहीं पड़ती। जैसे ही वो बारिश पानी के कांटेक्ट में आए ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर लेटेंट, दे आर नो लॉन्गर हिडन, वो जमीन के नीचे बचे नहीं पड़ रहते, वो स्प्राउट होकर के सैपलिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और कंटिन्यूअस दिन रात मैं एक ही काम करती हूँ, जहां से मैं ओरिजिनेट हुई हूँ यानी जो मेरा बर्थ प्लेस है, मैं वापस लाइफ दे देती हूँ अपने बर्थ प्लेस को। कैसे? पानी से उठी थी और फिर पानी दे दिया वापस बर्थ प्लेस पे। एंड अब की बार एडिशन के साथ, दिस टाइम इट मेक्स आई नॉट ओनली प्योर एंड ब्यूटिफाइड, तो अपने बर्थ प्लेस को, अपने ओरिजिन को मैंने और एडअप कर दिया, मैंने और उसकी खूबसूरती बढ़ा दी, मैंने उसे प्योरीफाई कर दिया, मैंने उसे रिफाइन कर दिया और खूबसूरत कर दिया। ठीक है, तो बारिश ने अपनी पूरी लाइफ साइकिल यहाँ बता दी। और लास्ट के 2 लाइंस बच्चों जो ब्रैकेट में है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट 2 लाइंस बच्चों, इसलिए क्योंकि इसमें एक पैरेललिज्म दिया गया है। देयर इज अ पैरेललिज्म ड्रॉन बिटवीन रेन एंड सॉन्ग। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम बारिश की बात कर रहे हैं तो साथ के साथ यहाँ कोशिश की गई है एक संगीत को, एक म्यूजिक को, एक गीत को बताने की, जिस तरीके से बारिश वो अपने ओरिजिनेट होता है बर्थ प्लेस से और वापस अपने बर्थ प्लेस को ब्यूटी प्रदान करता है। सिमिलरली एक सॉन्ग जहाँ से भी उठा हो, चाहे एक कवि के हृदय से उठा हो, चाहे एक कवि के कलम से निकला हो, वो ओरिजिनेट जहाँ कहीं से भी होता है लोगों के बीच फैलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, जब एकम्प्लिशमेंट हो जाती है, वो हर तरफ स्प्रेड अप हो जाता है, इट वॉन्डर्स हियर एंड देयर, कुछ लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं। रैग का मतलब कंसिडर्ड, अनरैग का मतलब अनकंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड। तो क्या लोग उसे कभी पसंद करते हैं, कभी नहीं करते हैं? करते हैं तो प्यार वापस देते हैं, नहीं करते हैं तो नफरत वापस देते हैं। तो चाहे ये गीत खत्म हुआ, लोगों के बीच फैला, फिर कंसिडर किया या नहीं किया लोगों ने, लेकिन अब वापस उसी प्यार के साथ वापस लौटा दिया जाता है अपने बर्थ प्लेस में। यानी फिर कवि के पास, यानी कवि के पास क्या पहुंचता है? उस प्यार, उस गीत को दिए गए प्यार के रूप में उसके पास धन दौलत, उसकी ख्याति, ये सब मिलती है। तो लास्ट की 2 लाइंस बच्चों पैरेललिज्म है, ये ध्यान रख लेना। रेन और सॉन्ग के बीच में कुछ अपोजिट वर्ड्स का खास करके ध्यान रखना जो यूज किया गया बार बार, डे एंड नाइट, लैंड एंड सी, रैग्ड एंड अनरैग्ड, ये कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं बच्चों। ठीक है, सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू। So that's all children, this was the voice of the rain in very simple and easy language. Children, just pay attention that there is a parallelism drawn between rain and song, and in the end you have to just keep in mind that the cyclic movement of water that you have already read in your previous classes, water cycle, that has been given a literary mode or a tone. Thank you so much. Please like it, share it and subscribe it. Watch my video and you are going to surely earn from it. Yeah.